Everyone, please let me know I'm audible to you or not. Yeah. Okay, I'm audible to you. Very good. I don't know why other students have not joined yet. We'll just wait for 1 or 2 minutes so that other students will join and then we can continue with our class. Voice is bit low, is it? Everyone, please confirm that my voice is clear. Can I get the confirmation from everyone? Clear. Good. Okay. Okay, fine. So students are joining. Students, please make sure that you join the class on time regularly. Don't be late. Okay. Yeah. So yeah. Good evening, all. How are you? I hope you all are fine. Right? Okay, good. So Vinit, is it your first class? I mean, पहला ही लेक्चर है तुम्हारा? इससे पहले तुमने ज्वाइन किया था लेक्चर? नो. ओके ओके फाइन. तो शायद मैं भूल गया होगा. ओके, नो इश्यूज. So just give 1 or 2 minutes to the students who are yet not joined. So let them join and then we can start with our chapter, that is sets. Maths 1, chapter first, sets. So till then, every one of you, please let me know that how many of you have gone through the practice set 1.1, 1.2, and 1.3. We have completed 3 practice sets, correct? So how many of you have solved examples from the practice sets? Okay, everybody has gone. Fine. Okay, fine. So yeah, luckily the electricity is back as well, so that we can continue with our class, no issues. I'm presenting my screen, students. Please let me know it is visible to you. Okay, Vineet has completed 1.1 and 1.2. Fine. Okay. So 1.3 is again for your homework that you have to complete. Now, as I discussed in the last class, that the topics intersection of two sets, union of two sets, these are very important topics. Okay. So why the people are leaving the class? I don't know. So yeah, we should go now. We should start. So operations on set. So we all know what is set, right? So what are the operations we are going to perform? The first one is intersection of two sets. Suppose A and B are two sets. The set of all common elements of A and B is called intersection of set A and B. It is denoted as A intersection B.
How we read this? We read this as A intersection B. Let me just point it out. Yeah, here. A intersection B. This is read as A intersection B. And how do we denote this? See, A intersection B is a set of such X. X is an element of A and X is an element of B. So intersection yani kya? Let us suppose we have given two sets A and B. Okay. And if we want to find out the A intersection B, that means we have to list all the elements that are present in A as well as in B. That means common elements. Okay. Now take few examples. First example is set A is given as 1357. Okay, set A is given as 1357. Set B is given as 2368. So, which element is common in these two sets? Please tell me, which element is common in these two sets? 3 is common, right? So, when we draw the Venn diagram, the element 3 is common in set A and B, so that we say A intersection B is 3, right? So, if we draw the Venn diagram, see, set A is drawn by this circle and we include all the elements 1, 5, 7, 3. Set B is such that its elements are 2, 6, 8, 3. 3 is common in both of them. That's why we are including 3 in both the sets. Okay, so this is intersection. Now, example second, that is set A is given as 1, 3, 9, 11, 13, and set B is given as 1, 9, 11. 1 is present, 9 is present, and 11 is present. All the elements of set B are present in A. So, in that case, A intersection B will be 1, 9, 11, and B is also 1, 9, 11. So, A intersection B is nothing but equals to B. Right? Understand? देखो B के जो एलिमेंट्स है वो सारे A में है, तो A इंटरसेक्शन B जो हम निकालेंगे that will be nothing but B only. So if we represent with the help of Venn diagram, so the bigger diagram is of set A and the smaller diagram is of set B. So as you can see, the set B is completely inside set A, right? So A intersection B will be equal to B. Here set B is the subset of A. If B is a subset of A, then A intersection B will be equal to B. This is the property that you need to remember. Similarly, if B intersection A is equals to B, then we can say that B is a subset of A. So these are quite related terms. So we will see some properties, we will try to prove them. Okay, so I hope I'm audible to everyone. Is it? सब लोग सुन रहे हैं ना मुझे, क्योंकि रिस्पॉन्स कोई नहीं कर रहा है. कर रहे हैं. ओके ओके, गुड गुड, कीप इट इंटरैक्टिव. ठीक है, कोई डाउट आता है तो बीच में पूछना भी है, and you have to keep responding to the close-ended questions, like if I ask in yes or no. Okay, fine. So properties of intersection of sets. What are the properties? First property is A intersection B is equals to B intersection A. Right? अभी हम सिर्फ यहाँ पे लिखने की स्टाइल चेंज कर रहे हैं. A इंटरसेक्शन B की जगह पे हम B इंटरसेक्शन A लिख रहे हैं, लेकिन उसके जो एलिमेंट्स रहेंगे वो कभी भी चेंज नहीं होंगे ना. सी, सेकेंड स्टेटमेंट का भी मीनिंग यही होता है कि सेकेंड स्टेटमेंट का मीनिंग क्या रहेगा कि A और B में जो भी एलिमेंट्स हैं वो like these two statements are nothing but equal, same. Now second property is if A is a subset of B, then A intersection B is equals to A. How? Let us suppose now we have a set B. Okay, this is set B and its elements are 1, 5, 7, 3, and we have another set A. So let us suppose this is set A. Okay, so set A के एलिमेंट्स क्या है? 5 and 3. सेट B के एलिमेंट्स क्या है?
1, 5, 7 and 3, right? So all the elements of set A are present in set B. That's why we say that A is a subset of B. And that's why if we want to find out the intersection of these two sets, A intersection B, if I find out A intersection B, so it will be nothing but 5 comma 3, the common elements 5 and 3. So it is nothing but the set A only. Okay, so the second property is again proved. Similarly, the third property, if A union B is equals to B, then B is a subset of A. Similarly, if A union A intersection, see, I'm reading this as an intersection, A intersection B is subset of A, then A intersection B is a subset of B as well. Now, how this works, the fourth property, how this can be proved, we will see. Okay, so let me just rub all these things. Okay, now randomly take A and B. Okay, we are trying to prove the fourth property. Okay, fourth property. So tell me the elements of A. It can be anything, 4 or 5 elements. Please tell everyone. Everyone can tell one element. 7, 5, 3, 1. Okay, 7, 5, 3, 1. Tell me the elements of B. Elements of B, I am considering it as a 3, 7. Don't repeat. 3 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद में हम ले लेते हैं 9 यहाँ पे, उसके बाद में हम ले लेते हैं 4 यहाँ पे, राइट? सो ओके, 6 भी लेना है, ठीक है, 6 भी ले लेते हैं. So we have two completely different sets, right? Set A is different than the set B, right? Now we will find out A intersection B. Who will find out A intersection B? Write the answer in the chat box. A intersection B will be equal to A intersection B will be equal to 3, 7, right? Correct. Now if you see A intersection B is a 3, 7. Now what the first statement says, if A intersection B is a subset of A, is A intersection B subset of A? A intersection B जो है वो A का सबसेट है या फिर नहीं है? है ना? देखिए ना, A इंटरसेक्शन B में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स A में भी है. So A intersection B is a subset of A. We can say that. Then see, A intersection B is also subset of B. अभी आप अगर चेक करोगे ना तो A intersection B जो है वो B का भी सबसेट होगा. Is it the subset of B as well? 3 and 7. Right? So this statement is proved. Now, A intersection A complement or A dash is what? Is 5. क्या कोई ये समझा सकता है मुझे? Can anyone elaborate this particular property कि ये किस तरह से होता है कि A intersection A complement अगर हम निकालते हैं तो वो 5 आता है, मतलब nothing, zero. Zero नहीं कह सकते, null, nothing. 5 empty. How it can be? कोई एक्सप्लेन करना चाहता है माइक ऑन करके? Nobody? Okay, fine. See, if let us suppose elements of A are 1, 3 and 5. Okay, so elements of A complement can never be A complement के जो एलिमेंट्स है वो 1 भी नहीं रह सकता, 3 भी नहीं रह सकता और 5 भी नहीं रह सकता. मतलब इनमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन रहेगा ही नहीं. ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहता है, राइट स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं हम? जब उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, राइट? इन दोनों को मिला के जो सेट बनता है वो दैट विल बी यूनिवर्सल सेट. सो दैट्स व्हाई देयर इज नो कॉमन एलिमेंट. दैट्स व्हाई ए इंटरसेक्शन
A complement is equals to 5. Now, A intersection A is A. That is obvious. If we want to find out the common elements between A and A, so it will be nothing but A. And lastly, A intersection phi is equals to 5. अभी सेट A है हमारा, सेट A के एलिमेंट से 7, 5, 3, 1 और एक सेट हमारा 5 है, 5. तो 5 के एलिमेंट्स क्या रहते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है ना इसमें. 5 इज एम्प्टी सेट. तो A इंटरसेक्शन 5 मतलब हमें एलिमेंट्स कॉमन निकालने हैं A में और 5 में. तो विच एलिमेंट इज कॉमन? नो एलिमेंट इज कॉमन. नल, 0, 5, राइट. तो इट विल बी 5 ओनली, राइट. तो यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी थी कि वी हैव टू टेक डिफरेंट एग्जांपल्स of sets and verify the above mentioned properties. So we have verified each and every property. So is there any kind of a difficulty in any of the 7 properties? Please let me know. 7 प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी है, सातों के साथ प्रॉपर्टीज आपको सब लोगों को समझ में आ गए? Okay, good. So our next topic is disjoint sets. So what are disjoint sets? See, set A is given here. Set A is given here, that is 1, 3, 5, 9, and set B is given as 2, 4, 8. Now if you observe, there is no single element common in them. कोई भी element common इनमें है नहीं. So if we want to draw a Venn diagram for these two sets, so it will look like this. This is the Venn diagram of A and this is the Venn diagram of B. So these two sets are completely separated. They don't have any kind of a connection. So that's why such sets are said to be disjoint sets. Confirm that not a single element is common in the set, as we have already confirmed. A and B, these sets are completely different from each other. So the set A and B are disjoint sets. Observe it in the Venn diagram. So we have given one activity. Observe the set A, B, C given by Venn diagrams and write which of these are disjoint sets. तो आप लोग मुझे बताओगे कि which of them, अभी ऑब्जर्व करना है, A, B और C को ऑब्जर्व करना है, which of them are disjoint sets? Please tell me. The question is, see, observe this diagram, complete diagram, observe this diagram, and here 3 sets are given, A, B and C. So out of these 3 sets, which sets are disjoint sets? मतलब उनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. ऐसे कौन से सेट्स है? तो कादम्बरी ने आंसर यहाँ पे दिया है A and C. So what are answers for other people? बाकी स्टूडेंट्स के आंसर्स क्या है? कादम्बरी ने अपना आंसर दे दिया, बाकी लोग बताना. आयुष, बोथ आयुष, वैष्णवी, वेदांत, विशाल, which of them are disjoint sets? Okay, good. आपको एलिमेंट्स नहीं लिखना, you just have to write the name of the sets, which is A and C. A and C are the two sets which are disjoint sets. Right? Just give me a second, student. So the dogs behind me are having late night party, so that's why there is a little bit of a disturbance. So I hope students
My voice is clearly audible to you. There is no background noise from my side, is it? Please confirm. Clearly audible to you. Okay, fine. चलो ठीक है. So activity second, let the set of English alphabets be the universal set. Now, how many elements can be this? Can be in this set? Okay, जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स है ना, तो उसका हमने एक सेट मान लिया, जिसे कि हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया. तो उस यूनिवर्सल सेट में हाउ मेनी एलिमेंट्स रहेंगे? कितने एलिमेंट्स रहेंगे स्टूडेंट्स, बताना मुझे जरा. 26 एलिमेंट्स रहेंगे, बिकॉज वी हैव 26 English alphabets. Now, the letter of the word laugh is one set and the letter of word cry is another set. So, we can say that these two are disjoint sets. Laugh में और cry में कोई भी word common नहीं है. That's why we can say these two are disjoint sets. Observe that intersection of these two sets is empty, which is quite clearly visible. So intersection of two sets and disjoint sets, these two concepts are clear to everyone. I am considering this. All right. All right, students. किसी को कोई confusion disjoint set में या फिर intersection? No confusion. Okay. So let's go further. Union of two sets. Now try to understand this concept. What is union of two sets? Let A and B be two given sets, then the set of all elements of A and B is called the union of the two sets. It is written as A union B and read as A union B. So A intersection B में और A union B में बहुत बार आपको कंफ्यूजन होगा. इंटरसेक्शन मतलब क्या है, यूनियन मतलब क्या है, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है. राइट अभी अगर आप देखोगे कि हम ए यूनियन बी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ए यूनियन बी. तो मैं यहाँ पे बेसिकली यू यूज कर रहा हूँ, कैपिटल लेटर यू यूज कर रहा हूँ, ऐसे पकड़ के चलना है. तो यू यानी यूनियन. लेकिन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, यूनियन में सारे एलिमेंट्स लेने हैं. सो यू ऑल्सो स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल. यूनिवर्सल यानी कि क्या, यूनिवर्सल यानी कि सारे एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट. राइट. तो इस तरीके से आप याद रखना है कि ए यूनियन बी मीन्स ए और बी के सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ पे कंसिडर करने हैं. सो इफ यू सी देयर आर टू सेट्स गिवन. ए इज द सेट इन विच द एलिमेंट्स आर -1, -3, -5, 0 एंड सेट बी इज 0, 3, 5. तो अगर मैं आपको पूछता हूं ए यूनियन बी, तो आपको ये नहीं लिखना है कि 0, सर इन दोनों में 0 कॉमन है तो ए यूनियन बी हमारा 0 हुआ. सो ये गलत हो जाएगा. ए यूनियन बी यानी कि क्या, इनके सारे के सारे एलिमेंट्स. कैसे, देखिए -3, -5, 0, -1, 3, 5, -3, -5, -1, 0, 3, 5. ऑल दो यहाँ पे 0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन जब मैं ए यूनियन बी लिख रहा हूं तब ये जो 0 है मैंने एक ही बार लिया है. राइट मैंने सिर्फ एक ही बार 0 को इंक्लूड किया है, मैं 2 बार 0 को नहीं लिखूंगा, इवन इफ देयर आर 2 zeros प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स. सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स. नाउ ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स. तो क्विकली अभी देखिए क्या करना है आपको, चैट बॉक्स में लिखना है ना. तो चैट बॉक्स में लिखते वक्त आपको पहले 1 लिखना है, यू लिखना है. यू के सामने आपके जो सारे एलिमेंट्स आएंगे, अभी यू की अगर मैं बात करूंगा तो 12, 11, 9, 6, 2, 4, 8, 10, 1, 3, 7 एंड 5. देखिए मैंने क्या किया, एक नंबर दिया, सेट का नाम यू रखा और सारे एलिमेंट्स इस तरह से लिख दिए. तो एक तो हमारा कंप्लीट हो गया. अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से आप सिर्फ नंबर डाल के सेट लिस्ट करना शुरू कर दीजिए चैट बॉक्स में. एवरीवन विल डू टिल द सेट 9th.
9 सेट्स आपको बनाने हैं, 8 बनाने हैं एक्चुअली, यू तो मैंने बना दिया। नंबर 1 डालोगे, सेट ए लिखोगे, ठीक है। अभी आपको कीबोर्ड की मदद से ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी लिखना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, इसके लिए आपको सिर्फ नंबर डालना है, राइट। यू विल राइट द नंबर, लाइक इफ यू वांट टू सॉल्व द फिफ्थ वन एंड उसके सारे एलिमेंट्स जो कुछ भी है। चलिए तो लिखना शुरू कीजिए जल्दी जल्दी, एवरीवन स्टार्ट राइटिंग। हेलो। तो या बाकी लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं? देखिए कादम्बरी ने यहाँ पे सेट ए बराबर लिखा है, बी भी बराबर लिखा है, ए यूनियन बी लिखा है करेक्टली, ए इंटरसेक्शन बी भी करेक्टली लिखा है। ए कॉम्प्लीमेंट अगर कादम्बरी तुम लिख रहे हो ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट में सारे एलिमेंट्स आएंगे एक्सेप्ट ए। सो 12 11 9 नहीं, बी के भी एलिमेंट्स आएंगे ना, 1 3 5 7, राइट। देखो आयुष ने जो लिखा है ना ऊपर सेट ए कॉम्प्लीमेंट वाला, तो वो करेक्ट है, तो वो लिख सकते हो, मतलब उसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे। अभी चलो, टास्क इज फॉर विनीत। विनीत राइट द सेट बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट विनीत लिखेंगे, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे आयुष, आयुष गोया जी। एंड द लास्ट वन विल राइट वैष्णवी एंड वेदांत, बोथ ऑफ देम। वेदांत एंड वैष्णवी आपको लास्ट के दो लिखना है। चलो अभी कादम्बरी एंड आयुष मेथा will take the break and others will start quickly। मैं यहाँ पे ये सब मिटा देता हूँ। नॉट अंडरस्टैंडिंग, ओके फाइन, ठीक है चलो। तो मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। यूनियन ऑफ सेट सबको समझ में आ गया, सेट ए सबको समझ में आ गया, सेट बी भी सबको समझ में आ गया। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी कि क्या, ए यूनियन बी, ए और बी के सारे एलिमेंट्स। अभी देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर, ए यूनियन बी यानी कि ए में जितने एलिमेंट्स है वो सारे, और बी में जितने एलिमेंट्स है वो सारे मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो ए में कौन से एलिमेंट्स है, 6 4 2, 8 10 भी है, 8 है 10 है। नॉट नेसेसरी टू राइट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इट कैन बी रैंडम, ओके।
उसके बाद में 1 3 7 एंड 5, एज सिंपल एज दैट। ए यूनियन बी में मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए ए के और बी के। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं लिखूंगा तो ए और बी में कॉमन क्या क्या है बताना जरा सब लोग। ए और बी में कॉमन क्या क्या है? 8 एंड 10 आर द कॉमन एलिमेंट्स। तो 8 और 10 में यहां पे लिखूंगा। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए को छोड़ के, सी दिस इज सेट ए, दिस सेट, इस सेट को छोड़ के जो सारे एलिमेंट्स है लाइक 1 3 5 7 12 11 9, ये सारे ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। ओके अभी अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं तो बी कॉम्प्लीमेंट में बी के एलिमेंट्स हमें छोड़ देने हैं, बाकी 6 2 4 12 11 9 सारे एलिमेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। अभी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जो कि ए यूनियन बी में नहीं है? सी ए यूनियन बी में क्या रहेगा? ए भी रहेगा और बी भी कंप्लीटली रहेगा, राइट? ये दोनों सेट रहेंगे। तो क्या बचा फिर? these elements these three elements are neither in a union b, a union b में ये तीन एलिमेंट्स नहीं है। तो a union b कॉम्प्लीमेंट यानी कि a union b में जो एलिमेंट्स नहीं है वो हमें यहाँ पे लिखना है, वो रहेगा 12 11 एंड 9। एंड लास्ट वन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो a इंटरसेक्शन b में क्या है? 8 एंड 10 है, राइट? अभी मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इस फिगर को, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि किस तरीके से हमें लिखना है। अभी देखना, ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स कौन से हैं? 8 और 10 है। इन दोनों को क्रॉस कर दो, मतलब ये एलिमेंट हमें नहीं लिखने हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दीज टू। तो लिखना शुरू करना है, 6 2 4 1 3 5 7 12 11 एंड 9। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया ना सबको? So we have discussed all the sets, possible sets here. अभी देखिए, अगर कोई कंफ्यूजन है किसी को भी यूनियन में, इंटरसेक्शन में, किसी भी चीज में, तो यहीं पे क्लियर कर लेना, बिकॉज दिस एग्जाम्पल सेकंड इज फॉर ओनली क्लियरिंग योर कंफ्यूजन्स। आपको जो कुछ भी कंफ्यूजन रहेंगे ना, सो वो इसी एग्जाम्पल में सॉल्व हो सकते हैं। आगे जाके जो एग्जाम्पल रहेंगे उसमें ये कंसिडर कर दिया जाएगा कि आपको ये सब चीजें आती है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ओके सो इफ एनी कंफ्यूजन let me know now. If not confusion, no doubt, you can type in the chat box, no doubt, we will move further. Okay, no doubt, fine. Kadambari has written it. Everyone, no doubt, fine. No doubt. Okay, चलो विशाल ने भी लिख दिया no doubt। तो आप ये सारे सेट जो हमने लिखे थे वो यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। या दिस इज वेरी गुड हैबिट टू राइट द सेट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इट इज वेरी गुड हैबिट, बट इट इज नॉट कंपल्शन, मतलब आपको लिखना ही है, इट इज नॉट नेसेसरी। ओके आप कैसे भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स तो मिलेंगे, प्रोवाइडेड दैट कि आप कोई एलिमेंट मिस मत करना, ठीक है? लेकिन जब आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो ना, तो एक मतलब अच्छी चीज क्या होती है कि लेट अस सपोज यू हैव रिटन द आंसर फॉर वन क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है, और आपने रैंडमली कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी लिख दिया, तो इट इज पॉसिबिलिटी की जो एग्जामिनर है, जो आपको पेपर चेक कर रहा है, वो गलती से कोई एलिमेंट मिस कर देगा और वो सोचेगा कि आपने ही मिस कर दिया है, सो ही विल cut your marks. But if you write in proper form like ascending order, so that it will be easy for him to identify कि इसमें इसमें कौन सा एलिमेंट लिखा है, कौन सा एलिमेंट नहीं लिखा है। So it is good practice, okay, but it is not compulsory, right? So the third question, set A is 1 2 3 4 5, set B is 2 3, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ए यूनियन बी जो रहेगा वो ए ही रहेगा, क्योंकि ए इज द बिगर सेट देन बी, सो सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी के ए के एलिमेंट्स ही रहेंगे। तो या so there are some properties here. If A union B, then B union A, both are equal. Second property is
if A is a subset of B, then A union B is equals to B. We will try to prove this property. ओके, तो A अगर B का सबसेट है तो इसके लिए मैं पहले तो एक B लिख लेता हूं, सेट B यहां पे मैं लिख लेता हूं। सेट B में मैं नंबर दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स आर देयर। और अगर मुझे सेट ए लिखना है सच दैट कि ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए एंड नॉट नेसेसरी कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 3 5। तो इफ यू कैन सी ए के जो सारे एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट है 1 3 5। so we can say that A is a subset of B. Then we have to find out, or then we have to prove A union B is B only. So अगर मैं A union B लिखता हूं तो देखना इन दोनों के एलिमेंट्स मुझे लिखना है, राइट। 1 दोनों में है तो मैं 1 एक ही बार लिखूंगा, 2 B में है तो मैं B 2 लिख सकता हूं, 3 भी दोनों में है तो मैं 3 लिख सकता हूं, 4 सिर्फ B में है तो मैं 4 लिखूंगा, 5 दोनों में भी है सो आई विल राइट 5 हियर, 6 and 7 is in B only. So if I write A union B 1 2 3 4 5 7, so it is nothing but equal to B, right? So the second property is again proved. Similarly, if A is a subset of A union B, A is a subset of this set, A union B का सेट है, उसका सबसेट है A, then B is a subset of A union B. तो B जो है वो A का सबसेट हुआ ना। सी यहाँ पे हार्ड नहीं है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जो है वो मुश्किल नहीं है, इट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि ये इसका सबसेट है, वो उसका यूनियन है, ये इसका इंटरसेक्शन है, यही चीजें थोड़ी से आपको कंफ्यूज करती है, नथिंग एल्स। इसमें हार्ड कोई मतलब आपको कोई मुश्किल मैथमेटिक्स सॉल्व करना है ऐसा तो है नहीं। नाउ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि मैंने एक सेट लिख लिया यहाँ पे यू, यू के एलिमेंट्स है मेरे 1 2 3 4, यू के एलिमेंट्स क्या है मेरे 1 2 3 एंड 4, और मैंने यहाँ पे एक सेट बना लिया ए अंदर, और ए के एलिमेंट्स क्या रहेंगे मेरे 1 3। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा जो एलिमेंट्स ए में नहीं है लेकिन यू में है, तो ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा 2 4। तो व्हेन आई राइट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब मुझे ए और ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स लेने हैं, तो 1 3 2 4 विच इज नथिंग बट यू। आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट, राइट, कि आपको भी फोर्थ प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई है। वी विल मूव टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी। फाइन, ऑल राइट, गुड, वेरी गुड, कीप रिस्पॉन्डिंग लाइक दिस। तो ए यूनियन ए इज ए ओनली। अभी अगर मैं यहाँ पे सेट ए लिखता हूं, ए सेट लिखता हूं, उसमें एलिमेंट्स लिखता हूं 1 2 3, तो ए यूनियन ए क्या रहेगा 1 2 3 ही रहेगा ना। so this is nothing but the fifth property. Sixth property is A union phi. A के एलिमेंट्स मेरे हैं 1 2 3, phi के एलिमेंट्स कुछ भी नहीं होते हैं 1 2, सॉरी phi के एलिमेंट्स कुछ भी नहीं होना चाहिए ना, मैं 1 2 क्यों लिख रहा हूँ। phi is a null set, so A union phi, A union phi मतलब मुझे A और phi के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, तो मैं पहले A के सारे एलिमेंट्स लिख देता हूँ, बाद में मैं phi के एलिमेंट्स लिखना चाहता हूँ लेकिन phi में कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो A union phi will be equal to A only. So this is the sixth property. अभी देखिए असली कंफ्यूजन कहाँ पे शुरू होता है। ये प्रॉपर्टीज हमने देख ली यूनियन ऑफ सेट्स की, एंड जो पिछली प्रॉपर्टीज आपने देखी है वो थी इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स की। अभी देखिए सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन फाई इज फाई, ए इंटरसेक्शन फाई इज फाई, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। and here you have given the property A union phi is A, so it is quite confusing कि क्या है यूनियन इंटरसेक्शन क्या है। सिंपली ध्यान में रखना है, यूनियन मीन्स सारे एलिमेंट्स एक साइड में जो, मतलब सी अभी यूनियन
ऐसे सेपरेटली तो नहीं लिखा जाएगा ना, दो सेट के बीच में यूनियन लिखा जाता है, यूनियन का सिंबल जो है दो सेट के बीच में लिखा जाता है। तो जब यूनियन का सिंबल दो सेट के बीच में हो तो समझ लेना है कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। जब इंटरसेक्शन लिखा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी जब हम लिखते हैं, तो ये एक बात आपको समझनी है कि ए और बी में जो कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स है उनका सेट, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स का सेट। इन केस अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इन केस अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 5। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, 5 बराबर ए intersection B will be phi if A and B are not having any element in common. So यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपका कंफ्यूजन जो है वो सिर्फ दो वर्ड से या फिर दो लाइन से दूर हो सकता है, वो है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। if you remember these two lines only, union means all the elements of both the sets. Union means what? All the elements of both the sets. And intersection means the elements which are common in both the sets. तो ये दोनों लाइन अगर आप याद रखते हो तो देयर इज नो कंफ्यूजन। बाकी सारे कितनी भी प्रॉपर्टीज रहने दीजिए, ये प्रॉपर्टीज आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब कोई भी आपके सामने कोई सवाल आएगा तो आपको अगर ये दो चीजें क्लियर है, सो यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर as well as in the probability chapter also. So these two are very fundamental and easy concepts. So make sure you don't get confused in these two concepts. I hope you all are good with both the concepts, and by considering that, we will move to the next topic or next point, that is number of elements in a set. So let A is equals to 3, 6, 9, 12, 15 is a given set with 5 elements. Number of elements in set A is denoted as n of A or number of A. We will simply call it as or read it as a number of A is equals to 5. 5 elements है ना, 1 2 3 4 5, तो number of A is equals to 5. B में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, number of B is equals to 6. Now number of elements in union and intersection of sets. तो देखिए हमने जो एक बेसिक कंसेप्ट सीखे थे ना, तो वो अभी थोड़ा सा एक्सपैंड हो रहे हैं, जिनका कि अभी यहाँ पे यूज हम करने वाले हैं। सो लेट अस कंसीडर द सेट A and B given as given above. So number of A plus number of B is equals to 5 plus 6. देख लेना फिर से, नंबर ऑफ A कितना है, 5 है, नंबर ऑफ B कितना है, 6 है। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं so it will be 5 plus 6 is equals to 11. But if we find out A union B, that means all the elements of A union B. So 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 36, अगर आप इन एलिमेंट्स को गिनोगे यहाँ पे, if you count these elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so number of elements in A union B is equals to 9. How is this possible? सी हमने नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी किया, वो 11 आया। नंबर ऑफ ए यूनियन बी किया, मतलब ए और बी के दोनों सेट के जो एलिमेंट्स है उनको ऐड किया, तो उनका नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना आया, 9 आया। हाउ इज इट पॉसिबल? हु कैन टेल मी व्हाई दिस हैपेंड? Who can tell me why this happened? सेम आना चाहिए ना, राइट? हम नंबर ऑफ ए ऐड कर रहे हैं विथ नंबर ऑफ बी बिकॉज 6 and 12 आर कॉमन इन द बोथ द सेट्स। दोनों सेट में ए में भी 6 and 12 है, बी में भी 6 and 12 है, तो हम उन्हें दो बार नहीं लिख सकते ना, हम उनको एक ही बार लिखेंगे, बराबर ना? तो देखना यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 6 है 12 है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही बार 6 और 12 लिखा है। मतलब ये जो चार एलिमेंट्स थे ना, ये चार एलिमेंट्स एक्चुअल में दो बन गए, तो इसकी वजह से हमारे दो एलिमेंट्स कम हुए। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी 11 था,
लेकिन नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो 9 आया. नाउ टू फाइंड ए intersection B means to find common elements between the set A and B. Number of A intersection B is 612. That is number of A intersection B is 2. So देखिए थोड़ा सा आपको अभी लिंक आ रहा होगा या फिर लग रहा होगा कि जब हम नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B को ऐड करेंगे नंबर ऑफ A यूनियन B के साथ में तो हमें मिलता है नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. So see, number of A plus number of B minus number of A intersection B, that is 5 plus 6 minus 2 is equals to 9, and number of A union B are 9. From equations 1, 2 and 3 we can write it as follows. तो ये जो formula यहाँ पे बना है ना, it is very very important. You can write it down. This formula needs to be written on your book, notebook. Write it. Everyone please write the formula. और इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, पहले यूनियन है बाद में इंटरसेक्शन है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. पहले लिख लेना, लिखने के बाद में डन लिखना है चैट बॉक्स में. बाद में हम इस फॉर्मूला को समझेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया और किस तरह से काम करता है. डन विशाल, डन, ओके गुड. सब लोगों ने लिखना है. विशाल, आयुष, मेथा, आयुष गोया जी, वैष्णवी, वेदांत, विनित. आप लोगों को नहीं लिखना है क्या? अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो मार्क्स आपके ही जाएंगे आपके एग्जाम में. 3 लोगों ने लिख लिया है, जल्दी जल्दी सब लोग लिखिए. ओके, आयुष ने भी लिख लिया, वेरी गुड. सेकंड ने लिखा, चला. ओके, 4 students have written. No response from Vaishnavi 8. Okay, fine. And Vedant also. Okay, Vedant. Okay, वैष्णवी ने भी रिप्लाई दे दिया. Only Vedant has not replied. Right. तो देखो, अभी इस फॉर्मूला को हम समझेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करेंगे एंड वी विल कंक्लूड टुडेज क्लास. ठीक है. तो इस फॉर्मूला में अगर आप देखोगे कि ए यूनियन बी यानी ए और बी के सारे एलिमेंट्स, यानी कि ये वाला सेट, राइट, दिस सेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. तो ए में हमने जैसे कहा था ना कि 6,12 है और बी में भी 6,12 था. तो इन दोनों में 6,12 कॉमन है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6,12 जो है वो एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी में. नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना रहेगा, 2 रहेगा. ए इंटरसेक्शन बी इज 6,12. तो हमें इन दोनों में से एक 6,12 को सब्ट्रैक्ट करना है या फिर डिलीट करना है. तो इसके लिए हमने नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी. So this is how the 6,12 remains only one time. So that's why we get the correct A union B. That's why we get the correct A union B. तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ यानी कि एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल मोस्टली close the today's class, and the word problems based on the sets we'll see in the next class. So let's understand this figure, this example. Okay, verify the above rule for the given weight diagram. तो अभी मुझे बताना नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू व्हाट, जल्दी जल्दी सब लोग बताएंगे. नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप लोग बताओगे वैसे ही लिखूंगा मैं. नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू हाउ मच. ए में कितने एलिमेंट्स है, इस वेन डायग्राम को देखो ना. नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर बताना है. ओके, आपने एलिमेंट्स लिस्ट कर दिए, दैट इज गुड. लेकिन हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 2 3 4 5, 5 numbers are there. 5, I will write 5 here. Good. Number of B, number of elements in B, number of elements in B 4. विशाल 4 नहीं है, 1 2 3 4, ये विशाल ने पकड़ लिया, ये 2 भी पकड़ना पड़ेगा ना. तो कितने हुए, 6.
Now, number of elements in A union B. How much? A union B. Number of elements in A union B. 11. Oh, wrong again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 are there. इन दोनों को ऐड मत करना, देखना यहाँ पे 3 है, ए में 3 है, कॉमन में 2 है, 5 और ये 4, 9. ए इंटरसेक्शन बी, बराबर 2. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज 9. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 5. Number of elements in B is 6 and number of elements in A intersection B is 2. So 5 plus 6 is 11, 11 minus 2 is 9. So our formula has been verified. Right students? Our formula has been verified. So अभी मुझे बताना कि किस किस को इस एग्जाम्पल में कंफ्यूजन है. विशाल, वैष्णवी, ओके, सब लोगों ने आंसर दे दिया. इसका मतलब किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है. या गुड. सो देख लेना, अभी हमारे पास एक फॉर्मूला तो है. ये फॉर्मूला हमने सब लोगों ने लिख लिया है. दिस फॉर्मूला, लेट मी जस्ट, या दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू ऑल नो दैट. एंड आप सब लोगों को ये फॉर्मूला याद करना है. मतलब आपको कभी भी पूछा जाए ना कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, सो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको बताता आना चाहिए. सो वी डोंट लिमिट दिस फॉर्मूला टू दिस एक्सटेंड ओनली. मतलब हम सिर्फ यहीं पे नहीं रुकेंगे कि ये फॉर्मूला बन गया तो ये फाइनल है. नहीं, हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं ना. देखो अभी ये जो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना, अगर मैं इसे राइट लेफ्ट साइड में ले आता हूँ, सो इट कैन बी नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. वेरीफाई द अबव रूल फॉर द गिवन सेट ए एंड बी. तो एक क्विकली हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं, इस रूल को, सेकेंड फॉर्मूला को हम वेरीफाई करते हैं एंड देन वी विल क्लोज टुडेस क्लास. सो क्विकली चलो बताओ, पहली वैल्यू मुझे बतानी है. नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू हाउ मच? नंबर ऑफ ए, हाउ मच? हु विल टेल? 8. Okay, let me just count 4 and 4, 8. Very good. Number of B, again, oh, is it 8 or 7? It is 7, I guess. Number of B is 7. Good. Now tell me number of elements in A intersection, sorry, not intersection, we will take first union. A union B. तो इसके लिए हमें एक A union B लिखना पड़ेगा. तो कैसे लिखेंगे हम? देखो A union B मैं यहाँ पे लिखता हूँ. A union B is A और B में जो दोनों एलिमेंट्स है वो मैं लिखूंगा. 1 A में भी है, B में भी है, मैं एक ही बार लिखूंगा. 2 दोनों में है, मैं एक ही बार लिखूंगा. 3 A में है, B में नहीं है, 3 लिखूंगा. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है, 10 दोनों में भी नहीं है, 11, 12 एंड 13. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर स्टूडेंट्स? 9 elements are there. No, 12 elements are there ना. 12 elements are there. नहीं, A यूनियन B 9 कैसे हुआ? 12 एलिमेंट्स हो गए ना. देखो ना, अगर आप इन दोनों के एलिमेंट्स को मतलब एक साथ लिखते हो तो ये सेट आएगा हमारा, और इसमें तो 12 है, 12 है ना. सो नंबर ऑफ A यूनियन B इज 12. नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बताना जरा. चलो कॉमन एलिमेंट्स हम अंडरलाइन कर लेते हैं. Anything else is common? No, nothing is common. So 2. Correct. 2 or how much? 3. Which one is remaining? Which one I am missing? 6 है, 5 है, 7 है. Yeah, 13. I am missing 13. Right? Yeah. Good. Thank you for reminding me. So अभी कर लेना. A number of A plus number of B. 8 plus 7 is equals to number of A union B is 12 plus number of A intersection B, that is 3.
8 plus 7 is 15 and 12 plus 3 is 15, hence verified, right? या सो या दैट्स इट अबाउट टुडे स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप अच्छे से रिवीजन करना, जिन्होंने वो प्रैक्टिस एट 1.3 सॉल्व नहीं किया है वो लोग वो प्रैक्टिस एट 1.3 सॉल्व कर सकते हैं। एंड एज यू मे hear from my background, the dogs are having a really heavy party, so I guess we have to stop here. Okay, so the word problems based on the sets we will take in the next class. ठीक है, तो कोई भी डाउट है लिख के रखना है नोटबुक पे, क्लास में पूछना है। यू हैव द अथॉरिटी टू टर्न ऑन योर माइक, आपको आप आपका माइक ऑन कर सकते हो मेरे क्लास में, कोई भी दिक्कत नहीं है। वी कैन हैव द इंटरेक्टिव सेशन, हम एक दूसरे के साथ बात करते करते हमारे जो सारे सब्जेक्ट्स है वो मैथ्स और साइंस हम सीखेंगे। ओके, सिर्फ मैं ही बोलूंगा आप लोग सुनोगे, दैट इज नॉट करेक्ट, आई डोंट थिंक इट इज करेक्ट। सो आपको भी बोलना है क्लास में, इससे आपका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होगा। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स, have dinner if you haven't already. Good night and bye bye. Chalo bye. Now you can leave the class. Class is ended. Bye bye everyone. Leave the class.